थोड़ा थोड़ा पास आ जाओ फटाफट चलो। स्वतंत्र दिन के पावन पर्व पर आपको ध्वज फहराने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय श्रीमान। प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को वर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भरे ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रणपुर हमारा, झंडा
તરીકે ઉપસ્થિત શાળાના પ્રમુખ શ્રી રાકેશભાઈ પંડ્યા સાહેબ, આજના મહેમાન શ્રી પીડબ્લ્યુડી મંત્રી તથા શાળાના ટ્રસ્ટી શ્રી રેવાભાઈ પટેલ સાહેબ, શ્રી મહેશભાઈ પટેલ સાહેબ, શ્રી ચંદુભાઈ પટેલ સાહેબ, શ્રી મનહરભાઈ પટેલ સાહેબ તેમજ બધા જ વિભાગના આચાર્યશ્રીઓ, શિક્ષકગણ. હવે હું શૈલેષ સરને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવે. My name is Preeti Gupta and my host Sanjeevani Patel is here to take you guys to the next level of the independence. आज वो लोग जो वतन के काम आते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो वतन के काम आते हैं, वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं. सलाम करते हैं हम वतन पर मर मिटने वालों को, उनकी वजह से ही तो हम चैन की नींद सो पाते हैं. तो ऐसे सभी सेनानियों को जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, एक छोटा सा ट्रिब्यूट हम वेदांत संकुल परिवार उनको देने आए हैं. नाउ संजीवनी मैम प्लीज टेक द ऑपॉर्चुनिटी. હર ઘર તિરંગા અભિયાનની શરૂઆત કરી છે. આ અભિયાન માટે તારીખ 9 થી 15 ઓગસ્ટ સુધી દેશના બધા જ ઘરોમાં રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવાશે. આ અભિયાનનો ઉદ્દેશ્ય દેશના નાગરિકોમાં દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રની ભાવના જગાડવાનો છે. हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से हमारे देश के नागरिकों में देश के प्रति सम्मान और गौरव की भावना को मजबूत करने में मदद मिलेगी. इस अभियान से हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने और उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. स्वतंत्रता दिवस उजवવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે જેણે જેણે આઝાદીમાં બલિદાનો આપ્યા એમને યાદ કરવાના. 1857 થી 1947 સુધી આઝાદી મેળવવા માટે મંગલ પાંડેથી જે શરૂઆત થઈ બલિદાન આપવાની, એ હજારો લોકોએ બલિદાનો આપ્યા અને એ બલિદાનોના લીધે અત્યારે આપણે આઝાદ હિન્દુસ્તાનમાં, આઝાદ ભારતમાં ફરી શકીએ છીએ, હરી શકીએ છીએ. અને આઝાદીનો મતલબ એ છે કે તમારે કોઈને કંઈ આપવું, કોઈની પાસેથી કંઈ લેવું નહીં. એનો મતલબ આઝાદીનો મારી દ્રષ્ટિએ આવો છે. તમે શિક્ષકો છે તો છોકરાઓને ભણવાનું આપે, છોકરાઓ બહુ બધું ભણી, બહુ બધું આગળ વધે. દરેક સંસ્થામાં, દરેક જગ્યાએ વેદાંતના બાળકો ડંકો વગાડે, એ જ અભ્યર્થના થઈ, એ જ ઈચ્છા આ વર્ષે આપણો ભારતનો 78મો સ્વાતંત્ર્ય દિવસે ઉજવી રહ્યા છીએ. આ અવસર પર આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રીએ પાવન કરતા આપણો દેશ આજે 15મી ઓગસ્ટ ઉજવી રહ્યો છે. આપણા આમંત્રણને માન આપીને આવેલા સુરેશભાઈ અંબાલાલ પટેલ જે સામાજિક કાર્યકર છે, કોંગ્રેસના એક મોટા આગેવાન છે, સંસ્થાપક અને જે અમે દિગ્દ્રષ્ટિ હીરાભાઈ, મનહરભાઈ, મહેશભાઈ અને અરવિંદભાઈ 4 જણાએ ભેગા થઈ અને આ વિધાન સંકુલ ચાલુ કર્યું. અને એ ચાલુ કર્યું અને આજે વટવૃક્ષ બનાવ્યું છે. એ અવધેશભાઈ, પ્રીતિબેન, સંજીવનીબેન અને બધા જ શિક્ષકગણોનો તમારો ખૂબ ખૂબ મહેનત છે. અને એ મહેનત અત્યારે રંગ લાગે.
Thank you so much, kids. Please go back. જેના ગીતના શબ્દો છે દેશ મેરે મેરી જાન હે તું.
सदक़े में जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। Day of our country. On this day in 1947, India got independence from the British rule. We honor the freedom fighters who fought really to make our country independent. Leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Bal Gangadhar Tilak, Subhash Chandra Bose, Lala Rajpat Rai, Sarojini Naidu, and more lead fight to freedom with determination and giving us the great gift of democracy. On this Independence Day, we remember the long battle that our freedom fighters fought and sacrifices that they have made. So let us work together to build a strong, prosperous country as to be a good citizen. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके बात पे निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने हम जाने हम जाने हम। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
बाकी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो सोना बनके पत्थर है टिकना, अब जो भी हो बादल करके पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे कदम दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं चलते, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे कदम दुश्मन के हिलते हैं। सुनो दौड़ में दुनिया पूरी नजर ना हम पे डालो, सुनो दौड़ में दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो दौड़ में दुनिया वालों पूरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है हमने झूठे बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा। आओ हमने झूठे बोले अब तो यारा अपना जहाँ है सबसे प्यारा। हमने कहा है जो तुम भी कहो। Come on guys, give them round of applause. Thank you so much Shivans and जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। जहाँ जलते जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाँ जलते जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुझसे तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके तीर बहाए। जहाँ जलते जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुझसे तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके तीर बहाए, और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ। thank you so हिंदुस्तान मेरी जान मेरी शान है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान।
प्लेयर के लिए सबसे जरूरी होते हैं 3 एस, स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। एक में भी कमी रहेगी तो प्लेयर में कमी रहेगी। क्या क्या? शाबाश। फिर ख्वाबों पे तू मिट के दे, जरा गिर के दे, तू गिर के दे, फिर ख्वाबों पे तू मिट के दे। मैदान भी होगा तेरा, तू हमसे ना लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। अपने चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। संस्कृति हो जिसकी महान, नाज करे हम सब जिस पर, वो मेरा हिंदुस्तान। सारे जहां से Bharat is our mother and we call her Bharat Mata. She is also known as India. In olden days, she was called Aryabhat Bharat Kanditisi. Our country has named after Bharat. Bharat was the son of King Dasharatha and Shakuntala. He was a great king. Thank you. My name is Dr. Bhimla Ambedkar. I also know as Baba Saheb. I am one of the architect of the Indian Constitution. Thank you. I am a national fruit of India. It called the king of fruit.
I am a national bird of India. Peacock is the national bird of India. It is a very beautiful bird. Thank you. I am a national city of India. Thank you. I am a national flower of India. Stand for purity. Thank you. I am a national anthem of India. Let us beginning with the national anthem. Jana Gana Mana, the sound of which feels so much pride and patriotism. The song Jana Gana Mana, composed originally in Bengal by Rabindranath Tagore, was it is Hindi version by Constitution Assembly as the national anthem of India on January 24, 1950. National anthem is a harmonium and testament on India's unity and diversity. Thank you. Good morning everyone. My name is. Good morning everyone. I am a national song of India. The national song of India is Vande Mataram. It was written by Bankim Chandra Chatterjee to inspire Indian citizens to fight for their freedom and independence. On January 24, 1915, was President of Dr. Rajendra Prasad. Good morning everyone. I am a national pledge of India. The national pledge holds significant importance in fostering a sense of unity, patriotism and commitment to the nation among its citizens. Standing for the national pledge is a sign of respect and appreciation towards the country. Good morning everyone. I am a national currency of India. The Indian currency is called the Indian rupees. 1 rupees convert to 100 paise. This symbol is the Indian rupees. It is designed to resemble both the Devanagari letter, the Latin capital letter R. Thank you. Good morning everyone. I am a national emblem of India. The emblem is an adaptation from the Sarnath lion, capital of Ashoka. It was adopted as the national emblem on January 26, 1950. The sculpture draws from Buddha's teaching and printing principles. It shows 4 ascetic lions mounted back to back on a circular abacus. There's also the Dharma Chakra, wheel of a law, a bull, an elephant and a horse. Below are the words that Satyame Jayate and the truth alone trumps. The national emblem is used as the official seal of the President of India and the central and state government. It also printed on all Indian passport and other international documents. Thank you. पर्वत वो सबसे ऊंचा
I am a national river of India. The Ganges River, also known as Ganga River, is a massive slow-moving river designed as India's national river. The Ganges River is sacred to the religion of Hinduism and is worshipped and viewed as a provider of protection and spiritual cleansing. Thank you. Good morning everyone. I am a national animal of India. My name is tiger. The magnificent tiger or the panther tigress is a national animal of India. Its grace, strength, agility and power on tiger. Its pride of a place as a national animal of India. It is found in various colors, especially blue, white and orange with black strips. Black strips on their upper body help them to hide away from wild hunting. Thank you. Very good. Clap करो. Good morning everyone, respected trustees, principals and dear my friends. I am a national flag of India. All of us are familiar with our national flag, popularly known as Tiranga or the three color. Saffron represents courage and sacrifice. White stands for peace and truth. Green that symbolizes prosperity. In the middle is the chakra. It has 24 blue spokes. 24 blue spokes and is a representation of progress. It was adopted by the Constitution Assembly on 22 July 1947. Thank you. Thank you so much. Come on, clap, right? Come on, clap for them. They have shown you the very best. अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जानो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो। अलमारों पे संवार दिए, अंगों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मंजिल अफसोस नहीं तेरी स्वागत से महफूज रहे, तेरी आन सदा जान मेरी रहे मेरी ज़मीन महबूब मेरी बस नस में तेरा इश्क है, ठिकाना पड़े कभी अपनी तेरा जिस्म
से निकल के फूल कहे मैं मिल जावा दिल भर के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लग जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू मैं मरता था जिस रुख में कभी उसका चला खम्मा ओ भाई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद मैं और चांद हमेशा रहता है यही मिट्टी में दिल जावा दिल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू All my dear friends, my name is Kavyanshi. I am studying in 7th class and Gujarati medium. I wish you all a very happy Independence Day. Honor the memory of our freedom fighters struggle to make our country free from the Britishers. From the day onwards, 15th August become a very important day in Indian history. From the day onwards, 15th August become a very important day in Indian history. After the independence, Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the first Prime Minister. We celebrate Independence Day as a national festival in India. Thank you, Jai Hind, Jai Bharat. अपनी छतरी तुमको देते कभी जबर से पानी कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 अपनी गाड़ी थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी थोड़ा अंदाज है वैसे है चाहे वैसे है अरे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना यार बात हम जान साज हम इश्क बात दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छोड़ते के तार से इंडिया वाले हर चीज छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले
સ્વાતંત્ર્ય પર્વ નિમિત્તે અહીંયા ઉપસ્થિત ટ્રસ્ટીગણ, આચાર્યગણ અને સ્ટાફગણ અને મારી સાથે અભ્યાસ કરેલા વિદ્યાર્થીઓને આજના આ પ્રસંગ અનુરૂપ હું 2 શબ્દો કહેવા માંગુ છું. તો આપ સૌ શાંતિથી સાંભળજો. 15મી ઓગસ્ટ એ ભારતના લોકો માટે ખૂબ જ મહત્વનો દિવસ છે. 15મી ઓગસ્ટ એટલે સ્વાતંત્ર્ય દિન. 200 વર્ષ જેટલા લાંબા સમય સુધી અંગ્રેજોએ આપણા દેશમાં રાજ કર્યું હતું. આપણે પરતંત્ર હતા, આપણે ગુલામ હતા. આપણા દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવા માટે ઘણા બધા નેતાઓનો ફાળો રહ્યો છે, જેવા કે મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, જવાહરલાલ નહેરુ, સુભાષચંદ્ર બોઝ. કેટલાક નેતાઓએ તો પોતાના દેશની આઝાદી માટે લડતા લડતા ખૂબ જ નાની ઉંમરે પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો છે, જેવા કે ભગતસિંહ, ખુદીરામ બોઝ, ચંદ્રશેખર આઝાદ. મહિલાઓમાં પણ કેટલીક મહિલાઓનો ફાળો રહ્યો છે, જેવી કે વિદ્યાલક્ષ્મી પંડિતા, સરોજિની નાયડુ. આ મહિલાઓ અને નેતાઓએ પોતાના દેશની આઝાદી માટે પોતાનું સમગ્ર જીવન પોતાના દેશને સમર્પણ કરી દીધું હતું. અને આપણે 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી આઝાદ થયા. આપણે 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી આ નેતાઓ અને શહીદોને યાદ કરવા માટે કરીએ છીએ. 15મી ઓગસ્ટની ઉજવણી દરેક નાની મોટી શાળાઓ, કોલેજો, સરકારી અને સાર્વજનિક સંસ્થાઓમાં કરવામાં આવે છે. 15મી ઓગસ્ટ એ ભારતનો સૌથી મોટો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. अटल जी ने कहा था ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है. हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो उस भारत के लिए. और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा ना तो एक ही आवाज आएगी, भारत माँ की जय. अस्तु. जय हिंद, जय भारत. ખૂબ સરસ જાનવી. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं. हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं. हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना. अब जो भी हो सोना बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं. हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं. हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. निकले हैं मैदान में हम जा हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर. खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, घोड़े कलाई मौत की इतनी तो हमें ताकत है. हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है, तैयार है. अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं. हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. શિક્ષક સાહેબો, બહેનો તેમજ વાલા વિદ્યાર્થીઓ સર્વને મારા નમસ્કાર અને આજના સ્વતંત્ર દિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. હું આજે 15મી ઓગસ્ટ વિશે જે કાંઈ 2 શબ્દ બોલું છું તે આપ સૌ શાંતિ સમझ के मैं नम्र विनती. सारी दुनिया सो रही थी तब भारत में हुआ था सवेरा, सारी दुनिया सो रही थी तब भारत में हुआ था सवेरा. 15 अगस्त का दिन था जब आज़ाद हुआ था भारत. મારું નામ યાદવ મિશ્રા છે. હું ધોરણ 8માં અભ્યાસ કરું છું. હા, આજે 15મી ઓગસ્ટ વિશે જે કાંઈ બોલું છું તે આપ સૌ શાંતિથી સાંભળશો તેવી મારી નમ્ર વિનંતી. માનનીય મુખ્ય અતિથિગણ, આદરણીય આચાર્ય સાહેબ શ્રી, શિક્ષક સાહેબો, બહેનો તેમજ વહાલા વિદ્યાર્થીઓ સર્વને મારા નમસ્કાર અને આજના સ્વતંત્ર દિવસની હાર્દિક શુભકામનાઓ. सारी दुनिया सो रही थी तब भारत में हुआ था सवेरा, सारी दुनिया सो रही थी तब भारत में हुआ था सवेरा. 15 अगस्त का दिन था जब आज़ाद हुआ था भारत मेरा. આજે આપણે 78માં સ્વાતંત્ર્ય દિવસની હાર્દિક ઉજવણી કરવા અહીં એકત્રિત થયા છે. જેવું કે આપણે જાણીએ છીએ કે 15મી ઓગસ્ટ આપણા સૌ માટે ખૂબ મહત્વનો
ખૂબ મંગલમય અવસર છે. આ એ દિવસ છે જ્યારે ભારતના તમામ નેતાઓએ વર્ષોના મોટા સંઘર્ષથી બ્રિટન શાસનથી આઝાદી મળી. આપણે દર વર્ષે 15મી ઓગસ્ટના દિવસના રોજ આપણે સ્વતંત્ર દિવસ ઉજવીએ છીએ અને સાથે જ ભારતના નેતાઓના બલિદાનોને યાદ કરીએ છીએ જેમણે भारत માટે પોતાની આહુતિ આપી. ના પૂછો જમાने को क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान है कि हम हिंदुस्तानी. ભારતને 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આઝાદી મળી. આઝાદી પછી આપણને આપણા તમામ અધિકારો મળ્યા. ભારતને આઝાદી માટે અંગ્રેજો સામે પહેલો અવાજ બ્રિટિશ આર્મીમાં કામ કરતા મંગલ પાંડેએ ઉઠાવ્યો હતો. ભારતના બધા ખુદીરામ બોઝ, ભગતસિંહ અને ચંદ્રશેખરે આપણે યાદ કરીએ છીએ જેમણે ખૂબ જ નાની ઉંમરે ભારતને લડતા પોતાનો જીવ ગુમાવ્યો હતો. તો આજે આ દિવસના અવસર પર આપણે પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ કે આપણે ભારતને વિશ્વનો સર્વશ્રેષ્ઠ દેશ બનાવીશું. હું મારા વ્યક્તિગત એક સારી દ્વારા વિરામ આપીશ. देश सलाम इस तरह को जिससे तेरी शान है, देश सलाम इस तरह को जिससे तेरी शान है, सब हमें समझा रखने का डॉक्टर दिल में जान है. जय हिंद, भारत माता की जय. कुछ करिए नस नस मेरी खोल कुछ करिए बस बस बना बोल कुछ करिए कोई तो चल करिए तू बेचारी कर जा. Thank you so much, girls. नाम मोहनदास करमचंद गांधी. पता सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद. पेशा वकील. न खड़क न ढाल फिर भी वो देश आपके साथ बिना हथियार के गांधी आपने भारत के बारे में सोचना भी संभव बना दिया. हम नए पीढ़ी के लोग यह समझना चाहते हैं कि आपने देश को कैसे जगा दिया. उन्हें लगता था कि रात के अंदर में कोई भूत आ जाएगा, उन्हें पकड़ लेगा. उस रात को बहुत अंधेरा था, उन्हें दूसरे कमरे में जाना था. उन्होंने प्रयत्न भी किया लेकिन वो अपनी जगह पर जम गए. उनका दिल जोरों से धड़क रहा था. उनकी माता ये सब देख रही थी. उन्होंने हंसकर पूछा कि क्या हुआ बेटा? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है. किस बात का डर है? माँ देखो ना यहाँ कितना अंधेरा है. कहीं भूत मुझे पकड़ कर ले जाएंगे तो? अरे अंधेरे से भी कोई डरता है भला? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत का डर तुम्हारे पास नहीं आएगा. वह तुम्हारा बाल भी पक्का नहीं कर पाएगा. क्या सच में माँ? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो मैं आज से ही राम जी के नाम का जाप करना शुरू कर दूंगा. हाँ, राम जी हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे. माँ की विश्वास ने गांधी जी को पूरे जीवन साहस दिया. जाते हैं. चलिए ना, नाटक देखने जाते हैं. कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र का नाटक. बेटा आज मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं. तो क्या मैं अपने दोस्तों के साथ जा सकता हूँ? हाँ ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, पर रात तक जल्दी लौट आना. ठीक है पिताजी.
नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी, बच्चों को खो देते हैं। नाटक के अंत में सबकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इस नाटक ने मोहन के दिल पे बहुत गहरा प्रभाव डाला और वो कहते हैं कि मुझे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह सत्य की शक्ति चाहिए, जिससे मैं किसी भी संकट का सामना कर सकूं। राजा हरिश्चंद्र एक महान आदमी थे। उन्होंने सत्य के लिए अपना घर, परिवार दांव पर लगा दिया था। यह नाटक बहुत ही अच्छा था। उन्होंने मुझे सत्य की राह दिखाई और हम सबको आज से सत्यमय जीवन जीना चाहिए। मोहन, हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए सत्य की राह पे चलना कठिन है। मोहन, क्यों कठिन है? पहले हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हमें सत्यमय जीवन जीना चाहिए। मोहन, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। क्यों आसान नहीं है? मैं आज से कसम लेता हूँ कि मैं आज से ही सत्य की राह पर चलूंगा और पूरे जीवन में सत्य का पालन करूंगा। चलो देखते हैं। उस दिन से मोहन ने सत्यमय जीवन को अपनाया, सत्य की राह पर चलना शुरू कर दिया। बड़े होकर मोहन ने जीवन को सत्य के लिए दांव पर लगाया। सत्य और साहस ने जीवन में मोहन को जीवन के कठिन समय में सफल बनाया, जिसे देखकर सारा संसार चकित रह गया। गांधी जी को भी यह अनुभव सहन करना पड़ा था। गांधी जी रेलवे की प्रथम श्रेणी से पीटरबर्ग जा रहे थे। तभी वहां पे एक यूरोपियन यात्री तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है, मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। लेकिन ये डब्बा सिर्फ गौरव के लिए है। तुम यहाँ से निकल जाओ, वरना मुझे स्टेशन मास्टर से तुम्हें कंप्लेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है, यहाँ मुझे बैठने का पूरा हक है। स्टेशन मास्टर, जल्दी यहाँ आओ। इस पुली को यहाँ से बाहर निकालो, इसे तीसरे डब्बे में डालो। यहाँ से निकल जाओ, मुझे धक्के मार के निकलना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उनको उनके सामान के साथ बाहर निकाल दिया। वो छुआ तक नहीं और पूरी रात कड़ी सर्दी में गुजारी। इस घटना ने गांधी जी के जीवन का रास्ता बदल दिया। उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध एक सत्य के हथियार बनकर इस सत्य के हथियार का प्रयोग किया और आगे जाके इस हथियार का नाम सत्याग्रह पड़ा। तुमने मुझे ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुम देश से निकाल दूंगा। गांधी जी को बच्चों से कुर्ता क्यों नहीं पहनते? बेटा मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुर्ता नहीं है। तो क्या हुआ, मेरी माँ आपके लिए कुर्ता सिल देगी। बेटा तुम्हारी माँ कितनों के लिए कुर्ता सिलेगी? मेरा परिवार बहुत बड़ा है। आपका कितना बड़ा परिवार है? ये पूरा देश मेरा परिवार है, सारे मेरे भाई बहन हैं। अच्छा, अब समझा कि आपको बापू क्यों कहते हैं। इसलिए वह राष्ट्रपिता कहलाए। सत्य, प्रेम और अहिंसा का संगम गांधी जी का जीवन था।
इस संगम ने गांधी जी ये संगम गांधी जी का जीवन था और ये हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए।
ત્યારથી વિદ્યાર્થીઓએ જુદું જુદું એમને જે પ્રમાણેની તાલીમ આપી એ પ્રમાણે બાળકો સારા પર્સન્ટેજ લાવે એ જરૂરી છે. તો એની સાથે સાથે લેડીઝ એટલે કે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી એ બહુ મહત્વની બાબત છે. અને અમારા સારા ટ્રસ્ટીગણની એક લાગણી છે કે આ સંસ્થામાં જે કોઈ બાળકો આવે તે તમામ સારા સંસ્કારી માનવ બને, જીવનમાં હતાશ ન થાય અને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી એને ઘણા ઓછા વાલીઓ આ પ્રસંગે આવતા હોય છે. આ શનિવારે પણ અમે ગુજરાતી માધ્યમના વાલીઓને આમંત્રિત કર્યા છે. અને મારી આજે તમને બધાને વિનંતી છે એ માટેની પૂરેપૂરી સુવિધાઓ આ સંસ્થામાં પૂરી પાડવામાં આવે છે. જે કોઈ ક્ષતિઓ હશે એ ક્ષતિઓને દૂર કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. બીજી કે આ એક સ્વાયત્ત સ્કૂલ છે અને સ્વાયત્ત સ્કૂલ હોવાને કારણે સ્વાયત્ત સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરાવવા માટે ઘણું બધું વેઠવું પડતું હોય છે આર્થિક રીતે. અને એ સાથે અમે આ વર્ષે એક નવો પ્રયોગ કર્યો. સ્વાયત્ત સંસ્થામાં એના બાળકને અભ્યાસ કરાવવા માટેની એની ઇંતજારીઓ. તમે સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને તમે આવ્યા વિદ્યાર્થીઓને પણ આજે અમે આખા વિદ્યાર્થીઓ બધા જ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા એ વ્યવસ્થા કરી છે કે તમે બધા જ આવો અને આ સ્વાતંત્ર્ય પર્વને ઉલ્લાસથી એને માણો. અને એ માટેનો આજનો કાર્યક્રમ થોડોક લાંબો જરૂર છે પણ હું એવી લાગણી અનુભવું છું કે તમને બધાને એમાં રસ પડ્યો હશે અને ભવિષ્યમાં પણ આવું કોઈ બી કામ સંસ્થાઓથી કરવામાં આવે અને તમને આમંત્રિત કરવામાં આવે તો અવશ્ય આવજો. ફરીથી આ શુભ દિવસે આપ સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને દેશનું ગૌરવ વધે, દેશની દિન પ્રતિદિન ઉન્નતિ થાય એ जो ये पूछो कि आजादी का दिन हम क्यों मनाते हैं तो हम कहेंगे कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ. राइट वेरी गुड. अब आजाद तो हो गया, फिर क्यों मनाया जाता है? वाई? हमारे देश में से गोरे लोग चले गए, ब्रिटिश लोग भी चले गए, फिर हम क्यों मनाते हैं? अब हमको क्या चाहिए? तो बेटा हम आजादी का दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे देश से भले ही गोरे लोग चले गए हैं, भले ही हम आजाद हो गए हैं, लेकिन हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर इतनी सारी बुराइयां अभी भी है जिनके साथ हमको लड़ना है. समझ में आई? कौन सी बुराइयां हैं? तो झूठ बढ़ता जा रहा है, लड़ाइयां बढ़ती जा रही है, द्वेष बढ़ता जा रहा है, कोई एक दूसरे को अच्छी नजर से नहीं देख रहा है. तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? उसके लिए हमको करना है एक काम. कैसा काम मैम? तो वो हम करेंगे हमारी नैतिकता से. कैसे करेंगे नैतिकता से? तो नैतिक का मतलब पहले समझो कि नैतिक क्या है. तो नैतिक का मतलब होता है बेटा अच्छे और बुरे की पहचान. आजादी के साथ में हम हमारे अंदर के जो निर्गुण है उससे भी आजाद होंगे. तो किस किस को अपने अंदर के निर्गुण से आजाद होना है? कौन अच्छा बनना चाहता है? वेरी गुड. हाथ ऊंचा करो जिसको अच्छा बनना चाहना है. वेरी गुड. तो जिसको अच्छा बनना चाहते हैं, जो अच्छा बनना चाहते हैं, सब अपने हाथ उठाकर बोलो कि यस मैम हम अब से नैतिक गुण करेंगे. लेकिन यही मतलब नहीं है कि नैतिक गुण क्या है ना? तो नैतिक गुण भी समझ लो क्योंकि आज आजादी का दिन है सर, तो हम सोच रहे हैं कि इनको पता भी चले कि नैतिक गुण क्या है.
अ,